एक हेडिंग और बना लो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट समटाइम इट बिकम्स ए नेसेसरी, मतलब कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस या माइनस रूट ऑफ ए स्केयर एम स्केयर माइनस बी स्केयर इज अ टेंजेंट टू x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. Then the point of contact is a square m upon plus या minus a square m square minus b square. Next is bm upon under root of a square m square minus b square. Again plus minus. Okay. Point of contact is a square m upon under root of a square m square minus b square plus या minus b square आना चाहिए, b square upon under root of a square m square minus b square. This is the point of contact of the tangent. अगर ये tangents है दो आपके पास, tangent है आपके पास, ये जो point आने वाला है आपके पास this, the coordinates of this will be this. Otherwise if sometime you get forget, तो you can solve it. पॉइंट को वहाँ लाइन को वहाँ पुट कर दो और एक्स और वाई निकाल लो, दैट्स आल्सो एन इजी जॉब. नेक्स्ट नाउ इज normals. Equation of x square upon a square minus y square upon b square is equal to, this is the equation of hyperbola. Just differentiate it, 2x upon a square minus 2y upon b square dy by dx is equal to 0. So dy by dx minus y upon b square dy by dx is equal to minus x upon a square. So dy by dx comes out to be x b square upon a square y, right? So equation of normal becomes, this is the slope of tangent now, slope of normal क्या हो जाएगा, negative reciprocal of this. So slope of normal is minus a square y upon x b square. So equation of normal is y minus y1 is equal to minus a square y upon x b square into x minus x1. This is the equation of normal. उसको जिस तरीके से हम लोगों ने एलिप्स में किया था उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जस्ट टू इजी टू रिमेंबर. सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1 अपॉन a स्क्वायर y इज इक्वल टू माइनस x माइनस x1 अपॉन x b स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट जी. अब यहाँ जो भी पॉइंट आप लोगों के पास आ जाएगा उस पॉइंट को यहाँ रिप्लेस कर दो, चाहे वो पैरामीट्रिक फॉर्म में है चाहे वो स्लोप की फॉर्म में है, देन पुट देम देयर एंड गेट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट. एज इफ आई एम टेकिंग ए काउंटर क्वेश्चन के फाइंड द कंडीशन that the line now normal in parametric form as we have done के पैरामीट्रिक फॉर्म्स आर a secant थीटा b tan थीटा. जो इक्वेशन अभी हम लोगों ने की है y माइनस y1 अपॉन a स्केयर y1 इज इक्वल टू माइनस x माइनस x1 अपॉन b स्केयर x1. इसमें अगर हम लोग अपने पैरामीटर्स रिप्लेस करते हैं देन यू विल गेट द इक्वेशन लाइक दिस. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामीट्रिक फॉर्म विल बी ax cos थीटा प्लस by cot थीटा इज इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर. अब इस इक्वेशन को अगर मैं यूनिफॉर्मिटी में बनाता हूँ, इफ आई मेक दिस इक्वेशन इन यूनिफॉर्म फॉर्म, यूनिफॉर्म फॉर्म का मतलब है कि cos थीटा और cot थीटा को एक ही एंगल में कन्वर्ट करूँ, मीन्स लाइक दिस ax इंटू हाफ एंगल फार्मूला में 1 माइनस टेन स्केयर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्केयर थीटा बाय 2. हाफ एंगल फार्मूला लगाया. cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेन स्केयर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्केयर थीटा प्लस
बी वाई इंटू 1 प्लस टेन स्केयर थीटा बाय 2 अपॉन 2 टेन थीटा बाय 2, ओके, यही हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर. Now if I take that tan theta by 2 is equal to say m या t, then you are getting this equation in the fourth power of tan theta. फोर्थ पावर ऑफ tan theta. तो इसका मतलब है आपको t की वैल्यू 4 मिलेंगी यहाँ से. So what the conclusion is that 4 normals can be drawn from a point to the hyperbola. So 4 normals can be drawn from a point to the hyperbola. Okay. Next is the other form is the line Lx plus my plus n is equal to 0. Lx plus my plus n is equal to 0 is normal to x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 if a square upon l square minus b square upon m square is equal to a square plus b square. कंपैरिजन से प्रूफ हो जाएगा इसका अपॉन n स्क्वायर, राइट जी. दिस इज द कंडीशन. द लाइन Lx plus my plus n is equal to 0 is normal if this condition hold, right. उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके then L upon a cos theta is equal to m upon b cot theta is equal to n upon a square plus b square, right. उस फॉर्म में उसमें थीटा को एलिमिनेट कर देते हैं, यू गेट दिस रिजल्ट. Now equation of tangent and normal to xy is equal to c square. Tangents and normals to xy is equal to c square. मतलब जब ये इक्वेशन आ जाएगी तब हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल किस तरीके से बनाएंगे. कोई सेम मेथड अडॉप्ट करूंगा मैं जो कैलकुलस में है आपके पास. y इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स, सो डेरिवेटिव इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स के, ये इसका डेरिवेटिव आ गया. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 इज राइट, या इसकी एक हाँ इसी तरीके से फॉर्म कर देते हैं. y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर x1 square into x minus x1, particular point लेंगे ना x1 square. So the equation comes out to be y x1 square minus y1 x1 square is equal to minus c square x plus c square x1 this way. In some books this is the equation given, the other books वो लोग x1 इसको c square को eliminate कर देते हैं पूरे क्वेश्चन में से ही, like this x y x की फॉर्म पहले ले आओ, x c स्क्वायर प्लस y x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 c स्क्वायर प्लस y1 x1 स्क्वायर. ओके जी, दिस इज द इक्वेशन. अदरवाइज अगर c स्क्वायर से फ्री निकालनी है देन द टेंजेंट विल बी लाइक दिस, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स plus y is equal to 0, so dy by dx is equal to minus y upon x. इस फॉर्म में बनाई जा सकती है वो. then the tangent is, slope of tangent is minus y1 upon x1, so the equation is y minus y1 is equal to minus y1 upon x1 into x minus x1, that is y x1 minus x1 y1 is equal to minus x y1 plus x1 y1. So that gives you x y1 plus y x1 is equal to x1 y1 plus twice of x1 y1. Okay जी, x1 y1 is a point that lies on this, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2c square, y x1 is equal to 2c square. This is the equation of tangent. Okay जी, x y1 plus y x1 is equal to 2t square. Now normal is, इसको रहने देना,
अडॉप्ट करना है कर लो, अदरवाइज जनरली दे टेक द इक्वेशन इन दिस फॉर्म. So tangent is xy1 plus yx1 is equal to 2c square. At parametric form इसकी लिखाई थी अभी ct and c upon t. In parametric form ct c upon t पे that comes out to be x ct plus y c upon t is equal to 2c square. So this is xt plus y upon t is equal to 2c, or you can say xt square plus y is equal to 2ct. This is the parametric form. Now normal. Normal is slope of tangent हमारे पास आई हुई है minus y1 upon x1. So slope of normal is x1 upon y1. नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाता है ना. सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y minus y1 is equal to x1 upon y1 into x minus x1. So this is y1 minus y1 square is equal to x1 minus x1 square. So the equation is y1 या x की फॉर्म में लेके आइए, x1 minus y1 is equal to x1 square minus y1 square. This is the equation of normal. Okay जी. So this is how you can find out the equation of tangent and normal in different forms, right? Now let us take a counter example on this. Yes, find the equation of tangent and normal. Find equation of tangent and normal to 41x square minus 4y square is equal to 25 at 1 minus 2. First of all, check the position of the point. 41 minus 16, 25, 11 minus 6, 5, 25 to 25. So point lies on the curve. So I think मैंने on the curve के लिए आपको equation नहीं बताई. Whenever the point lies on the on any conic, the equation of tangent is t is equal to 0. वो चाहे वो conic आपका circle है, चाहे वो parabola, चाहे वो ellipse है, चाहे वो hyperbola. Okay. So equation of tangent at x1 y1 2 x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 is x1 upon a square minus y1 upon b square minus 1 is equal to 0. तो यही proportion यहाँ लगाऊंगा मैं. So that is 41 x1 minus 4 is equal to 21, 25. So x1 की जगह रिप्लेस करिए 1, y1 की जगह रिप्लेस करिए -2. So tangent is 41 into x into 1 minus 4 into y into -2 is equal to 25. So the answer is 41x plus 8y is equal to 25. This is the equation of tangent. 41x plus 8y is equal to 25, right? Normal is यहाँ से स्लोप उठानी है नॉर्मल की, यहाँ से उठा लो. डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव कर लो, और जो हमने लर्न किया मेथड उससे करना, उससे कर लो. आई एम पिकिंग स्लोप फ्रॉम हेयर.
स्लोप इज नॉर्मल की स्लोप, टेंजेंट की स्लोप क्या आ रही है -41/8 -41/8, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी 8/41, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 8/41, डेरिवेटिव भी करते वो भी इसी के लिए करते, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y plus 2 is equal to 8/41 x minus 1. So this is 41y plus 82 is equal to 8x minus 8. So 8x minus 41y plus 74 is equal to 0. This should be the answer. 8x minus 81y. There is mistake somewhere. Oh yes, वो ऐड होगा इधर आकर के 90 plus 90 is equal to 0. So this is the normal. Okay, this is how you can find the equation of tangent and normal when the point is on the curve, right? Next I am taking a counter question when the point lies outside it. Next is find the equation of tangent to the curve, 4x square minus 9y square is equal to 1, which is parallel to 4x 4y is equal to 5x plus 7. ओके जी, तो यहाँ से तो हम लोग सिर्फ एक स्लोप ही पिक कर सकते हैं, राइट? सो द लाइन इज y इज इक्वल टू, लाइन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, 5/4x प्लस 7/4. सो इट इज, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, x स्क्वायर अपॉन 1/4 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1/9 इज इक्वल टू 1. सो इट इज टेंजेंट if c square is equal to, c square means 49/16 is equal to, c square is equal to a square is 1/4, a square m square is 25/16, a square m square plus b square plus 1/9, right? oh I am sorry, उसको c लेकर के चलिए, c square is equal to, इट इज टेंजेंट, मतलब ये इक्वेशन बन गई, इसके पैरेलल बनानी थी. सो टेंजेंट इज y इज इक्वल टू 5/4x प्लस 7, टेंजेंट इज y इज इक्वल टू 5/4x प्लस c. सो टेंजेंट इज c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है 1/4, m स्क्वायर इज 25/16 प्लस b स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर. इन केस ऑफ हाइपरबोला इट इज माइनस 1/b स्क्वायर. So c square is equal to 25/64 minus 1/9, right? Just solve it. C square is equal to 225 minus 64 upon 64 into 9 ही लिख दो, अंडर रूट निकालना ही पड़ेगा. So this gives you 161 upon 64 into 9. So c comes out to be plus minus root of 161 upon 24. 8 into 3, 24. So tangent is y is equal to 5/4x plus minus root of 161 upon 24. This is the answer. Okay ji, y is equal to 5/4x plus minus root of 161 upon 24. This is how you can find if a line is given to you. Okay ji. So yes students, let's start with the assignment on hyperbola. Question number first.
कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसाई ऑफ हाइपरबोला x minus 1 whole square minus y minus 2 whole square upon 16 is equal to 1 is. I have discussed this earlier also. Okay, let capital X is equal to x minus 1, capital Y is equal to y minus 2. हाइपरबोला है, इसमें बड़े या छोटे का फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी. So eccentricity I have to calculate 16 is equal to 9 into e square minus 1. 16 upon 9 is equal to e square minus 1. E square is equal to 16 upon 9 plus 1, 25 by 9. So eccentricity हमारे पास आ रही है 5 by 3. ओके जी, फोकस होता है प्लस माइनस AE0 इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ए हमारे पास यहाँ है 9 3, सो प्लस माइनस 3 5 0 रिजल्ट आ जाएगा. दिस इज इन केस ऑफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई. स्मॉल एक्स में कन्वर्ट करने के लिए 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, राइट, और उधर 0 इज इक्वल टू वाई माइनस 2, सो 6 2. ओके, एंड the other time if I replace there minus 5 is equal to x minus 1, then x is equal to minus 4. So foci are 6 2 and minus 4 2. Okay, this should be the answer. Minus 4 2 and 6 2. C option is the answer. Right, I am explaining once again. Coordinate of the foci of hyperbola x minus 1 whole square upon 9 minus y minus 2 whole square upon 16 is equal to 1. इसको रिप्लेस करो कैपिटल एक्स, इसको कैपिटल वाई. इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए इलिप्स होता तो ये चीज़ मैटर करती कि कौन सा बड़ा है, मतलब किसका डिनोमिनेटर बड़ा है. जो बड़ा होता उसी को हम लोग ए लेते. यहाँ ऐसा नहीं होता. जो कोफिशिएंट नेगेटिव है उसका डिनोमिनेटर जो है आफ्टर चेंजिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसका भी कोफिशिएंट नेगेटिव है उसको हम लोग बी लेके चल देते हैं. So this is 16 is equal to 9 into b square is equal to a square into e square minus 1. So this is 16 by 9, e comes out to be 5 by 3. So 5 by 3 is focus होता क्या है, प्लस माइनस AE0 in standard form. So in this case a हमारे पास है 3 under root of 9. So that is 3 into 5 by 3 plus minus 5 0. इसको कैपिटल X की जगह 5 प्लस माइनस 5 रिप्लेस करो, यहाँ 0 रिप्लेस करो, you get the answer 6 2 and minus 4 2. So C is the answer. Now next question. The equation under root of x minus 2 whole square plus y minus 1 whole square minus this, the equation x minus 2 whole square plus y minus 1 whole square minus root of x minus x plus 2 whole square plus y square is equal to C. He wants the condition for hyperbola. Okay, let me recall the definition first. Ellipse. Ellipse के केस में क्या था? Ellipse के केस में था it is a locus of the point, it is a locus of the point sum of whose distances from two fixed points, sum of whose distances pf1 plus pf2 is always equal to 2a. Okay, sum of the distances from two fixed point is always constant and that distance is always greater than the distance between these two points. ओके, ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. ये एलिप्स में होता था. हाइपरबोला में क्या है? हाइपरबोला के केस में है दिस इज द लोकस ऑफ द पॉइंट, दिस पॉइंट पी एक्स वाई, लोकस ऑफ द पॉइंट डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस, डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस मींस pf1 माइनस pf2 इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट. राइट, अब ये कांस्टेंट क्या होना चाहिए? इस केस में ये जो कांस्टेंट था दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन दोस टू. यहाँ ये जो डिस्टेंस है दैट शुड ऑलवेज बी लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू. ओके, हाइपरबोला इसी तरीके से बनता है ना.
राइट। तो ये जो पॉइंट्स हैं F1 F2, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उससे लेस होना चाहिए डिस्टेंस 2a, एंड दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, वो लेस होता है। सो मेरे को वो डिस्टेंस लेस चाहिए। सो अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, लेट अस कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। वो दो पॉइंट क्या बन रहे हैं हमारे पास यहाँ, वन इज 2 1 2 1 and the other is -2 0, this way. These are the 2 points. Say this is F1 F2, F1 F2 डिस्टेंस क्या आ रहा है हमारे पास, 2 + 2 4 16, 1 minus +1 √17, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया √17, राइट। तो इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है पूरे का पूरा, जो दिस माइनस दिस डिस्टेंस, दैट शुड बी लेस देन √17, राइट। नाउ चेक द ऑप्शंस, 0 6 बियॉन्ड दिस, 0 5 √16 आएगा कितना, 4 पॉइंट समथिंग। बी ऑप्शन अगेन रिजेक्टेड, सी, इट्स अ सी आंसर, ओके, 0 to √17, सो सी इज द आंसर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन डील्स विद द डेफिनेशन, ओके, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि रटा रटा आ गया चलो वहां लिख दिया, दैट डील्स विद डेफिनेशन। उसके साथ में रिकॉल कर रहे हैं एलिप्स को। एलिप्स के केस में क्या है, इट्स अ लोकस ऑफ द पॉइंट सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ओके। और ये जो डिस्टेंस आने वाला है F1 F2, दैट शुड ऑलवेज बी, ये जो डिस्टेंस आने वाला है F1 और F2, दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, ओके, वो उनसे बड़ा होना चाहिए। हाइपरबोला के केस में क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस, और वो जो डिस्टेंस होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन, कम होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन द फोकस। तो मैंने वो डिस्टेंस निकाल लिया √17, तो उससे लेस होना चाहिए, ओपन इंटरवल ले रहा है वो √17, मीन्स √17 इज नॉट इंक्लूडेड, सो सी इज द आंसर, राइट, 0 to √17। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। थर्ड क्वेश्चन इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, वो बिल्कुल ऊपर आ चुका है क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है फिर दोबारा से, वहां स्टैंडर्ड इक्वेशन दी हुई थी हमें, यहाँ बनानी है हमें। थर्ड, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, फोकस हुआ, वर्टेक्स हुआ, डायरेक्ट्रिक्स हुआ, दीज आर ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट। द क्वेश्चन इज 9x² -16y² +18x +32y इज इक्वल टू 151। कांस्टेंट को पहले ही उधर ले जाया करो, राइट जी। सो दिस इज 9x² + 2x -16y² -2y इज इक्वल टू 151। परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, 9 × x² + 2x + 1, राइट, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x उसका स्क्वायर, -16y² -2y + 1, अगेन सेम वे, इज इक्वल टू 151 + 9 -16, मतलब जो भी यहाँ किया ऐड किया उधर ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट किया वहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो। This gives you 9 × x + 1 whole square -16 × y - 1 whole square is equal to how much? 160, 160 -16, 144. So the ellipse hyperbola comes out to be x + 1 whole square upon 16 minus y - 1 whole square upon 9 is equal to 1. Let capital X is equal to x + 1, capital Y is equal to y - 1, राइट, इसेंट्रिसिटी निकालेंगे। b² जिसका कोफिशिएंट नेगेटिव है उसको b² लेंगे, 9 इज इक्वल टू 16 × e² - 1, 9/16 + 1 इज इक्वल टू e², 5/4 इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी, राइट जी। ए क्या हमारे पास 4, सो फोकस इज फोसाई रादर, फोसाई आर ± AE 0 होता है, सो ±50, राइट। यहाँ रिप्लेस करो ±5, so ±5 is equal to x + 1 and 0 is equal to y - 1. So x is equal to 5 - 1 4 and x is equal to -5 - 1 -6. So foci should be, foci are 4 1 and -6 and 1. So this should be the answer.
4 1 minus 6 1, A ऑप्शन इज द आंसर। जनरल वर्किंग है क्वेश्चन में, कोई भी पार्ट निकालना हो हम इसी तरीके से ट्रांसलेट करेंगे उसको। पहले 9x स्क्वायर, x को कलेक्ट करो एक जगह पे, y को एक जगह कलेक्ट करो, जो भी ऐड किया जो भी सब्ट्रैक्ट किया उधर साइड में उसी तरीके से बैलेंस करो इक्वेशन को। 9 इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाए हुए हैं। 16 इंटू वाई माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144, इक्वेशन रिड्यूसेस टू दिस। So a square is equal to 16, that means a is equal to 4, b square is equal to 9 means b is equal to 9. So this gives you, this is the relation, b square is equal to a square into e square minus 1. So e comes out to be 5 by 4, right? तो अगर e आया तो फोकस क्या होता है, a हमारे पास था 4, e है 5 by 4 प्लस माइनस 50, कैपिटल x कैपिटल y की जगह रिप्लेस करो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया, a is the answer. Next question, fourth. Locus of point of intersection of the line root 3x minus y is equal to 4 root 3t and root 3tx plus ty is equal to 4 root 3. Okay, these are the two equations. वो ये कह रहे where t being the parameter is a hyperbola whose eccentricity is equal to where t is a parameter. तो दो इक्वेशन में जो भी पैरामीटर होता है वो हमें रिमूव करना होता है, राइट? उसको रिमूव करके जो भी फाइनल इक्वेशन बचती है दैट इज अ इक्वेशन ऑफ लोकस। वो पैरामीटर टी की फॉर्म में हो, वो पैरामीटर थीटा की फॉर्म में हो, या जिस भी फॉर्म में वो कहे वो हमें रिमूव करना है। सो टी फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन कम्स आउट टू बी रूट 3x माइनस वाई अपॉन 4 रूट 3। इसको दूसरी इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3x माइनस वाई अपॉन 4 रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3x माइनस वाई अपॉन 4 रूट 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 रूट 3। ओके, जस्ट टेक द एलसीएम, 4 रूट 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रूट 3 इंटू रूट 3x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस रूट 3x माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 48. So this gives you 3x square minus root 3xy plus root 3xy minus y square is equal to 48. So these both cancelled out. So this gives you 3x square minus y square is equal to 48. So the equation is x square upon 16 minus y square upon 48 is equal to 1, right? What he says now, he says कि उसकी एसेंट्रिसिटी भी निकालिए। सो एसेंट्रिसिटी के लिए जिसका भी कोफिशिएंट नेगेटिव है 48 इज इक्वल टू 16 इंटू ई स्केयर माइनस 1, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू ई स्केयर, ई इज इक्वल टू 2. सो द एसेंट्रिसिटी कम्स आउट टू बी 2. सो बी इज द आंसर. Okay, now I am repeating question once again. The locus of point of intersection of two lines, दो lines दे दी गई हैं, which includes an parameter. इधर पैरामीटर है t, उधर ही पैरामीटर t है, तो t को हमें रिमूव करना है। t की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, रूट 3x माइनस वाई अपॉन 4 रूट 3, इनको यहाँ दोनों में रिप्लेस करो, राइट? इक्वेशन फ्री फ्रॉम t आ जानी चाहिए। फ्री फ्रॉम t जब आ जाएगी उस इक्वेशन की एसेंट्रिसिटी निकाल दो, and this is the standard equation of hyperbola, so it's a hyperbola, so E is equal to 2. Next question, fifth. Fifth question, equation of one of the latest rectum of the hyperbola 10x minus 5 whole square plus 10y minus 2 whole square is equal to 9 into this is, very nice question, 10x minus y whole square plus 10y minus 2 whole square is equal to 9 into
3x plus 4y minus 7 whole square. Alright, this is the question. क्वेश्चन में मजा तब आता अगर वो ये भी ना कहता कि जी ये हाइपरबोला है, वो सीधा कहता फाइंड द एक लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द कोनिक, फिर मजा था, फिर हमें जज करना पड़ता है कि ये हाइपरबोला है क्या है. सो द क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आऊँगा. स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मेरे को एक्स और वाई का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा. सो लेट अस मेक इट 100 इंटू एक्स माइनस 5/10 हो जाएगा 1/2 होल स्क्वायर प्लस 100 y माइनस 2/10 1/5 हो जाएगा इज इक्वल टू 9 इंटू 3x प्लस 4y माइनस 7 होल स्क्वायर. राइट जी. x माइनस हाफ 100 को उधर लेके जा रहा हूँ, x माइनस हाफ होल स्क्वायर y माइनस 1/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/100 3x प्लस 4y माइनस 7 होल स्क्वायर. राइट. होती क्या इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ किसी भी कॉनिक की जो इक्वेशन है वो क्या बनती है, इट्स अ लोकस ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट बियर्स ए कांस्टेंट रेशियो टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन. तो मैं उसी में सारी की सारी इक्वेशन रिड्यूस करूंगा. पॉइंट, पॉइंट ये यहां से दिखाई दे रहा है हाफ एंड 1/5. ओके, रेशियो, रेशियो दिखानी शुरू होगी 9/100 अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा देन, और जो लाइन है ये भी लाइन है दैट इज दिस लाइन. ओके, लेट अस फर्दर क्लेरिफाई इट, और ज्यादा क्लियर करते हैं उसको. डिस्टेंस है ये, सो मेक इट स्क्वायर रूट x माइनस हाफ होल स्क्वायर y माइनस 1/5 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स का लेंगे 3/10. ओके, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनना चाहिए -5 अपॉन राइट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर plus 4 square means 9 plus 16 means 25. राइट, अंडर रूट के नीचे 25 तो अंडर रूट के नीचे 5, रूट ऑफ रूट के नीचे 25 मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लाइक दिस. ये आना चाहिए. इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई तो यहाँ आपके पास क्या आना चाहिए 5. फिर तो इस जगह के ऊपर क्या आ जाएगा इनटू, सीधा लिख दूं 5 लाइक दिस 10. जस्ट टू क्लैरिफाई इट आई हैव जस्ट इट बैलेंस्ड इट, मेक यू क्लियर. यही लिखना है, यही लिख लो वहां पे. सो इन द नेक्स्ट स्टेप आई गॉट द फ्रेश इक्वेशन, राइट द स्टैंडर्डाइज्ड इक्वेशन इज इक्वल टू 3/2 इंटू 3x प्लस 4y माइनस 7 अपॉन रूट ऑफ 9 प्लस 16. राइट जी. सो व्हाट इज दिस, एकदम क्लियर है कि आपके पास लाइन क्या है, जो लाइन है दैट इज 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. जो पॉइंट है वो क्या है हाफ एंड 1/5. ओके जी. पॉइंट ऑन लोकस पी एक्स वाई क्या है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू ई टाइम्स दिस डिस्टेंस. राइट, एवरीथिंग इज क्लियर. सिंस ई इज ग्रेटर देन 1 हियर सो इट्स एन हाइपरबोला. ई ग्रेटर देन 1 इसेंट्रिसिटी 3/2 आ गया, इट्स ए हाइपरबोला. राइट, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखो वो क्वेश्चन में क्या कर रहा है आपसे. Now he says equation of latest rectum. You know equation of latest rectum is always parallel to directrix and passes through 1/2 and 1/5. Right? तो लोग उसका slope of directrix is -3/4. Right? Equation is उसकी भी slope वही रहेगी. Equation of that again same. So equation of directrix is y minus 1/5 is equal to minus 3/4 into x minus half. This should be the answer. Okay, you can make it a 5y minus 1 upon 5 is equal to minus 3 into 2x minus 1 upon 8. Right, इनको रब करो. So this should be the answer. 40x 40y minus 8 is equal to minus 30x minus plus 15. So the answer should be 30x plus 40y is equal to 23. This should be the answer. Yes, 30x plus 40y minus 23 is equal to answer. This is the C is the answer.
ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग वंस अगेन द क्वेश्चन। इक्वेशन आपको ये दे दी गई थी, राइट right? उसने कहा जी इट इज ए हाइपरबोला। हाइपरबोला ना देता देन इट वाज ए वेरी गुड क्वेश्चन, दो इट हैडंट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। इक्वेशन को स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, उसके लिए एक्स और वाई का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 बनाओ। यहाँ बाहर क्या आ जाएगा आपके पास 100, इधर 100, 100 का 10 का स्क्वायर आएगा ना, अंदर डिवाइड करोगे उसके साथ 1/2, 1/5। नाउ टेक दैट 100 टू दिस साइड अपॉन 100 इंटू 3x प्लस 4y माइनस 7 होल स्क्वायर। स्टैंडर्डाइज्ड इक्वेशन जो है उसको दिमाग में लेकर के आओ कि इट्स द लोकस ऑफ द पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट रखो, it's a locus of this point whose distance from a fixed point bears a constant ratio to its distance from a fixed line। अब मेरे को वो पॉइंट ढूंढना है, वो लाइन ढूंढनी है, दैट आई हैव डन फ्रॉम हेयर। ओके जी, पॉइंट हमारे पास आ गया डिस्टेंस के हिसाब से हाफ एंड 1/5, और लाइन हमने पूरी की पूरी सेट कर दी 3x प्लस 4y माइनस 7 अपॉन दिस। इसको बैलेंस किया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू 5 करके। नेक्स्ट स्टेप में 5 और 10 को कैंसिल किया, 3/2। दिस इज अ प्लेस फॉर इसेंट्रिसिटी, this is the place for directrix, this is focus। okay जी, so the equation of latest rectum वो मांग रहा है आपसे, latest rectum is always parallel to, latest rectum कहाँ पे होता है, passing through focus, directrix, ये दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं। जो स्लोप इसकी दी हुई है वही स्लोप उसकी लो, -3/4। पॉइंट लेकर के चलिए फोकस वाला, so you got the equation, this is the way। If the eccentricity of hyperbola x square minus y square secant square alpha is equal to 5, right, is root 3 times the eccentricity of the ellipse। दूसरा कर्व वो ले रहा है ellipse x square secant square alpha plus y square is equal to 25, right। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करो उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में, x square अपॉन 5 माइनस y square अपॉन 5 cos square alpha is equal to 1। ओके जी, नेक्स्ट इक्वेशन x square अपॉन 25 cos square alpha plus y square अपॉन 25 is equal to 1, राइट। नाउ हेयर जिसका कोफिशिएंट नेगेटिव है उसी को b स्क्वायर लेके चलते हैं, 5 cos square alpha is equal to 5 इंटू e स्क्वायर माइनस 1, हाइपरबोला e स्क्वायर माइनस 1, b square is equal to a square into a square minus 1, cancelled out, this is cos square alpha is equal to e square minus 1, so e square is equal to cos square alpha plus 1। ओके, देयर वहाँ जो चीज़ छोटी होती है उसको हम लोग लेकर के चलते हैं b, तो यहाँ 25 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड यू नो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है, राइट। 1 तो चली जाएगी फिर वो उसके एक्सट्रीम एंगल के ऊपर, वो ये सेंट्री एंगल नहीं लेंगे हम लोग, 25 cos square alpha, राइट। सो दिस इज स्मॉलर, 25 cos square alpha is equal to 25 इंटू 1 माइनस ई डैश स्क्वायर, राइट। एलिप्स के लिए 1 माइनस ई डैश स्क्वायर, उसकी एसेंट्रिसिटी ई डैश मार्क कर दी, दिस कैंसल्स, सो ई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos square alpha, ई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू cos square alpha, सो ई डैश इज इक्वल टू sin alpha, राइट जी। नाउ कम टू द क्वेश्चन, वो कहता है इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ये है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रूट ऑफ cos square alpha प्लस 1 इज इक्वल टू, इसेंट्रिसिटी रूट में आ जाएगी ना, अंडर रूट cos square alpha प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स द इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, एलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या है, साइन अल्फा, सो साइन अल्फा, ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, cos square alpha plus 1 is equal to 3 sin square alpha, agreed। so what you are left with, that tan square alpha is equal to root 3 times the eccentricity of this, root of cos square alpha plus 1 is equal to root 3 sin square alpha, that gives you
किसी एक को कन्वर्ट करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर अल्फा. सो दिस गिव्स यू 1 and 1 2 is equal to 4 sin square alpha. So 2 to the 4 sin square alpha is equal to 1 by 2. So sin alpha is equal to 1 by root 2 means 1 by root 2 कौन से एंगल पे उसकी वैल्यू आती है? From all these pi by 4 के ऊपर, right? So this is the answer. So the answer is B here. I am explaining once again. If the eccentricity of this hyperbola, this curve, x square plus x square minus y square secant square alpha is equal to 5, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, x square upon 5 minus y square upon 5 cos square alpha is equal to 1. So this will be b square is equal to a square into e square minus 1. e यहाँ से निकाल लिया हम लोगों ने, e should be equal to रूट ऑफ cos square alpha plus 1. एक स्टेप यहाँ और ऐड कर रहा हूँ just to clarify you. Then x square upon 25 cos square alpha plus y square upon 25 is equal to 1. जो छोटा होता है उसको b लेके चलते हैं, छोटा यहाँ cos square alpha as the value of cos alpha is in between minus 1 and 1. स्केयर हो जाएगा और छोटा हो जाएगा. 25 cos square alpha is equal to 25 into 1 minus e dash square. इलिप्स की सेंट्रिसिटी को e dash मार्क कर दिया. So e dash comes out to be sin alpha. Now question, what the question says? That is eccentricity of hyperbola is equal to root 3 times the eccentricity of ellipse. So replace करो, वहाँ से sin alpha निकालो, sin alpha की वैल्यू आ रही है 1 by root 2. So 1 by root 2 कहाँ वैल्यू होती है? Which angle correspond to that? That is pi by 4. So the answer is B here. Now next question. Question number 7th. If E and E dash be the eccentricities of hyperbola and its conjugate. Very old time question, always important. E and E dash, आप hyperbola लेके चलिए, x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. ओके जी, इसका conjugate क्या हो जाएगा? Its conjugate is x square upon a square minus y square upon b square is equal to minus 1. Just right. सबसे पहले कॉन्जुगेट के लिए क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि इसका कॉन्जुगेट क्या होने वाला, उधर 1 है तो उधर -1. मींस डायग्रामेटिकली अगर एक्सप्लेन करूं, इफ हाइपरबोला इज दिस वे, इट्स कॉन्जुगेट विल बी दिस, राइट. उसमें कोई कन्वर्शन नहीं आता, सिर्फ हम लोग एक्सिस को ऐसे घुमा देते हैं, दैट इज इट्स कॉन्जुगेट, राइट. लेकिन ऐसा कर देने से हमारे जो ए और बी हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं. सो हेयर इसेंट्रिसिटी इज, here b square is equal to a square into e square minus 1. So b square upon a is equal to e square minus 1. E square is equal to b square plus a square upon a square, right. और उधर क्या हो जाएगा? उधर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं, इफ आई कन्वर्ट दैट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये जो चीज़ है वो नेगेटिव हो जाएगी, वो प्लस हो जाएगी, राइट. और जो नेगेटिव होती है उसको हम लोग इस साइड लेकर के चलते हैं. सो a square is equal to b square into e dash square minus 1. उसकी सेंट्रिसिटी को e dash मार्क कर रहा हूँ. जो भी नेगेटिव बनेगा स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है उधर 1 होना चाहिए, तो उधर 1 बनाऊंगा तो इसका b क्या बन जाएगा फिर? a. सो a square is equal to b square into e dash square minus 1. बस यही फंडा है उसमें. a square upon b square is equal to e dash square minus 1. a square upon b square plus 1 is equal to e dash square. So e dash square is equal to a square plus b square upon b square, right. Now reciprocating them, reciprocating means 1 upon e square, reciprocating and adding, इकट्ठा ही कर देते हैं, adding 1 upon e square plus 1 upon e dash square is equal to, हाँ जी, e square क्या हो जाएगा? a square upon a square plus b square plus b square upon a square plus b square. सेम है आपके पास डिनोमिनेटर, सो a square plus b square upon a square plus b square is equal to 1, right. So the result is a part.
ए पार्ट, राइट, वेरी ओल्ड टाइम क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हाइपरबोला लो, राइट, उसका कॉन्जुगेट सबसे पहले बनाओ, कॉन्जुगेट, राइट, इसेंट्रिसिटी निकालो इन टर्म्स ऑफ दिस, उसको ट्रांसलेट कर दो। उस केस में इसेंट्रिसिटी के लिए ए को बी बन जाएगा, बी ए बन जाएगा, सो ई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, रेसिप्रोकेटिंग एंड एडिंग, सिंपल। और फाइनल के लिए तो चाहे इसको आप लोग क्रैम ही कर लो कि ये रिजल्ट अगर एक कॉन्जुगेट है देन स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाओ, 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इज एट्थ नाउ, the eccentricity of hyperbola with latest rectum 12, ओके जी, लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम हाइपरबोला के केस में क्या होता है, 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए इज हाउ मच, 12, एंड द सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस इज, कॉन्जुगेट एक्सिस कितना होता है, 2b, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस मींस आधा b, सो b रह जाएगा सिर्फ, b इज इक्वल टू 2√3, ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। एंड इससे जी आप इसेंट्रिसिटी निकालिए, 2 6 12, सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 6a, b इज इक्वल टू 2√3, 12 इज इक्वल टू 6a, सो a इज इक्वल टू 2, राइट। अब हमारी जनरल वो इसेंट्रिसिटी है दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1, सो b स्क्वायर इज हाउ मच, 12 upon 4 is equal to e square minus 1, 4 3 the 12, so e square is equal to 4, e is equal to 2, this should be the answer, yes, a is the answer, simple question था एकदम, ओके। दो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो कि जी लेटेस्ट रेक्टम इतना है और सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस इतना है, सो लेटेस्ट रेक्टम क्या बनता है हाइपरबोला के केस में, एलिप्स में वही बनता है, हाइपरबोला में वही बनता है, 2b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू 12, सो b स्क्वायर कम्स आउट टू बी 6 है, सो b सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस दे रहे हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस कितना होता है, 2b, ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, कॉन्जुगेट एक्सिस b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ √3, तो वैल्यूज यहाँ रिप्लेस करी, e कम्स आउट टू बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नाउ, द फोसाई ऑफ एलिप्स, एलिप्स दे रहा है वो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओके जी। हाइपरबोला दे रहा है वो एक्स स्क्वायर अपॉन 140 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 81 इज इक्वल टू 1 अपॉन 25, ओके। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, यहाँ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, 144 अपॉन 25, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 अपॉन 25, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे 25 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 25 एक्स स्क्वायर अपॉन 144, राइट, लाइक दिस, minus 25 y square upon 81 is equal to 1, so if I convert that, that is written like this, okay, so that's why I have taken this, इधर b square is equal to 16 into e 1 minus e square, फोकस तो निकालने के लिए इसेंट्रिसिटी निकालना पड़ेगा, b square upon 16 is equal to 1 minus e square, so e square is equal to b square, e square is equal to 1 minus b square upon 16, so e square is equal to 16 minus b square upon 16, ओके जी। एंड देयर उधर क्या बनेगा b स्क्वायर, उसका हाइपरबोला निकाल, उसका फोकस निकाल ही देते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू 81 अपॉन 25 इज इक्वल टू 144 अपॉन 25 इज इक्वल टू e डैश स्क्वायर माइनस 1, कैंसल्ड आउट, 81 upon 144 plus 1 is equal to e dash square, so this is 225 e dash square, so e comes out to be 15 upon 12, ओके जी। तो फोकस क्या बनने जा रहा है इसका, फोकस इज इक्वल टू a is this much 144, 12 अपॉन 5 इंटू
15 अपॉन 12 अपॉन 12, 12 12 कैंसिल, 3 3 0, ये इसका बना फोकस, राइट। नाउ इधर फोकस क्या बनने जा रहा है, E इज इक्वल टू 16 माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट अपॉन 4, ए हमारे पास 4 ही है तो यही इसका फोकस बन गया। सो फोकस ऑफ एलिप्स इज रूट ऑफ 16 माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए से 4 कैंसिल हो जाएगा, वही रह गया, कॉमा 0, इधर 0। नाउ दे कोइंसाइड इंप्लाइज रूट ऑफ 16 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, स्क्वेयरिंग करेंगे, सो 16 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9, बी इज इक्वल टू रूट 7, दिस शुड बी द आंसर। बी स्क्वायर, यस वो बी स्क्वायर मांग रहा है तो बी स्क्वायर 7 लिखो, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, दिस इज द रिजल्ट। द फोसाई B square is equal to 7, so B is the answer. Yes, I am repeating again. The foci of ellipse x square upon 16 plus y square upon B square is equal to 1, right? So B square is equal to, मैंने eccentricity निकाल दी in terms of this, focus निकाल देंगे AE, right? 4 से multiply हो जाएगा root of 16 minus B square comma 0, right? इसका तो ये तो सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसे पहले निकाले हैं फोकस हमने फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन में, फोकस आ गया 3 0, राइट। थोड़े ये अटपटे से थे बट कैलकुलेशन है वो। सो दिस थिंग इज इक्वल टू 3, सो 16 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, सो बी इज द आंसर।